السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مولک بیماری کی وجہ سے ملک میں چل رہے لاک ڈاؤن سے معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ایسے میں معیشت کو واپس پٹری پر لانے کے لیے RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ RBI مولک بیماری کو لے کر الرٹ ہے۔ اس طرح کے ماحول کو RBI قریب سے نگرانی کر رہی ہے۔ معیشت کو نقصان سے بچانے کے لیے RBI نے ایک مرتبہ پھر سے بڑے اعلان کیے ہیں۔ RBI نے آج ریورس ریپو ریٹ میں کمی کی ہے۔ اس کٹوتی کے بعد ریورس ریپو ریٹ 4% سے گھٹ کر 3.75% رہ گیا ہے۔ ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ RBI نے کہا کہ معیشت میں گروتھ کے لیے نابارڈ کو 25,000 کروڑ روپے، SIDBی کو 15,000 کروڑ روپے اور ہاؤسنگ فائنانس بینک کو 10,000 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اس سے NBF MSME ریئل اسٹیٹ کو نقدی کی قلت دور ہوگی۔ RBI کے گورنر نے NPA قواعد میں بینکوں کو 90 دن کی راحت دی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور اور مرکزی وقف کونسل کے صدر نشین مختار عباس نقوی نے رمضان کے مقدس مہینے میں تمام مذہبی، عوامی، ذاتی مقامات پر لاک ڈاؤن، کرفیو، سماجی فاصلے پر مؤثر طریقے سے عمل کرنے اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر عبادت وغیرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ نقوی نے آج ملک کے 30 سے زیادہ ریاستی وقف بورڈ کے سینئر افسران سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ بات کی۔ نقوی نے تمام ریاستی وقف بورڈ، مذہبی، سماجی تنظیموں سے کہا کہ جعلی نیوز اور اشتعال انگیز باتوں اور افواہ پھیلانے والی سازش سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ملک میں بلا تفریق تمام شہریوں کی صحت سلامتی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب ہندوستان میں مولک بیماری کے معاملات تقریباً 13,000 ہو گئے ہیں، مرکز نے تازہ تنقیدوں کے درمیان ٹیسٹنگ کی اپنی حکمت عملی کی مدافعت کی ہے اور کہا کہ ٹیسٹنگ کا تناسب کم نہیں ہے۔ مرکز نے کہا کہ 736 اضلاع میں 325 میں مولک بیماری کے کوئی انفیکشنز نہیں ہیں۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی نے عوام کو مولک بیماری کا متحدہ مقابلہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن مولک بیماری کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن جارحانہ ٹیسٹ کروانا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ اگر ہر کوئی خوف کے بجائے اعتماد کے ساتھ وائرس کا مقابلہ کرتا ہے تو ہندوستان بہتر مقام بن سکتا ہے۔ ED نے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کاندھلوی اور انتظامیہ کمیٹی پر منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے۔ ED نے دہلی پولیس کی FIR کی بنیاد پر کیس درج کیا ہے۔ ان پر بڑے پیمانے پر ملک اور بیرون ملک سے فنڈ لینے اور حوالے کے ذریعے پیسہ جمع کرنے کا الزام ہے۔ وزرائے کے گزشتہ ماہ نظام الدین مرکز میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جو ملک میں مولک بیماری کا بڑا ہاٹ اسپاٹ بنا تھا۔ ملک کے کئی ریاستوں سے آئے جماعتی اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے، جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں مولک بیماری سے متاثرہ پائے جانے کی بات کہی گئی تھی۔ وزرائے کے اس سے پہلے تبلیغی جماعت کے رہنما مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف غیر ارادتاً قتل کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کے پروگرام میں شامل ہوئے لوگوں میں سے کچھ کی مولک بیماری سے موت بھی ہوئی تھی۔ زوم نیٹ ورک پلیٹ فارم کے سلسلے میں آج اس وقت سنسنی خیز خبر منظر عام پر آئی کہ جب کانگریس کے سابق صدر اور وائناڈ کیرالہ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مولک بیماری کے مسئلے پر میڈیا سے خطاب کیا۔ جس زوم نیٹ ورک کا استعمال راہل گاندھی نے کیا ہے، اس کے تعلق سے اب مرکزی وزارت داخلہ حکومت ہند کی جانب سے خبر آئی ہے کہ اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کا استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ محفوظ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ وزارت داخلہ نے یہ بات انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد کہی ہے اور ایڈوائزری جاری کی ہے، جس سے سنسنی پھیل گئی ہے کیونکہ اس سے بڑے بڑے صنعت کار، اسکول، کالج، سیاسی پارٹی وغیرہ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کا بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں۔ مولک بیماری کو لے کر لاپرواہی برتنے، انفیکشن کو پھیلانے اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اطلاع دیے بغیر پناہ دینے والوں کے خلاف اتر پردیش کی یوگی حکومت نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ایسے سبھی افراد جن کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، انہیں عارضی جیل میں رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ داخلہ کے چیف سیکرٹری اویناش اوستھی نے میڈیا کو بتایا کہ مقدمات کی زد میں آئے تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کو عارضی جیلوں میں رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے ایک ایک شخص کی تفصیل لے کر ان کے خلاف جہاں بھی معاملات درج ہیں وہاں کارروائی کیے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خود بھی اکثر تنازعات کا شکار رہنے والی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی بہن رنگولی ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ رنگولی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں مراد آباد میں ڈاکٹروں پر حملے کو لے کر ایک متنازع ٹویٹ کیا تھا۔ ان کے اس قابل اعتراض ٹویٹ کو لے کر کئی مشہور شخصیتوں سمیت ٹویٹر یوزرز نے رپورٹ کی تھی اور ان کے اکاؤنٹ کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ رنگولی چیڑیل کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہونے پر مشہور زیورات ڈیزائنر اور بالی ووڈ اداکار اور ڈائریکٹر سنجے خان کی بیٹی فراح خان علی نے ٹویٹ کیا ہے جو شہ سرخیوں میں ہے۔ فراح خان علی نے ٹویٹ کیا،
शुक्रिया ट्विटर और ट्विटर इंडिया। मैंने इस ट्वीट को इसलिए रिपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने खास फिरके को निशाना बनाया और लिबरल मीडिया को लाइन में खड़ा करके गोली मारने को कहा। उन्होंने अपना मुआवजा नाजी से भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहलिक बीमारी के मईशत पर असरात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में एक इजलास तलब करते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के साथ में मईशत को दोबारा मुतहरिक करने और मोहलिक बीमारी से शदीद मुतासरा शोबों को दोबारा फाल बनाने पर गौर ख़ौस किया। इस इजलास में मोहलिक बीमारी से शदीद मुतासरा छोटे पैमाने की सनतों के शोबों से लेकर हवाबाजी के शोबे की मुश्किलात और लाखों अफराद के बेरोजगार होने का जायजा लिया। मरकजी हुकूमत ने अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर एक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान में मोहलिक बीमारी के इलाज में तिब्बी प्रोटोकॉल से मुतालिक गुमराहकुन इत्तलात फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। USCIRF अमरीकी मरकजी हुकूमत का एक इदारा है जिसे दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर नजर रखने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने कायम किया है। इस हफ्ते के अवाइल में इस इदारे की रिपोर्ट गार्जियन में शाया हुई थी। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान पर मोहलिक बीमारी पर मुसलमानों को निशाना बनाने और दवाखानों में इन्हें अलहदा रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। ट्विटर पर कमीशन ने मोहलिक बीमारी के फैलाव पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाते हुए झूठी क़यास आराइयों की वजह से मुसलमानों पर हमले का सिलसिला जारी रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अक्सर ये खतरनाक बयानबाज़ी सियासतदान फैलाते रहे जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस रुसवाकुन मुहिम से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद में इजाफा होता है। USCIRF की इस रिपोर्ट से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की कि मोहलिक बीमारी के मरीजों के इलाज में कोई इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। किसी भी सिविल हॉस्पिटल में मजहबी बुनियादों पर किसी को अलहदा नहीं रखा जा रहा है। जुनूबी दिल्ली की पॉश कॉलोनी में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय में मोहलिक बीमारी की तशखीस होने से इलाके में खलबली मच गई। जुनूबी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने जुमेरात को बताया कि मालवीय नगर में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने वाले एक लड़के को मोहलिक बीमारी पॉजिटिव पाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके बाद एहतियातन 72 लोग जो इसके राब्ते में आए थे इन्हें घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा मुतासिर लड़के के साथ साथ काम करने वाले 17 दीगर को भी क्वारंटाइन भेज दिया गया है। मोहलिक बीमारी से निपटने और लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में पैदा शुदा सूरत-ए-हाल और दीगर मसाइल का जायजा लेने के बाद रियासती हुकूमत के महकमा इंतजामिया उमूर ने आज एक नोटिफिकेशन जारी करके 20 अप्रैल से किराने की दुकानें, मिठाई की दुकानों और बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली लाजमी अशिया की दुकानों और पैकेजिंग करने वाली दुकानों और कारखानों के अलावा ज़रई पैदावार की ज़मानत शुदा कीमतों पर ख़रीद व फरोख्त करने वाले बाजार, ज़रई सामान, बीज, खाद और दीगर साजो सामान की मरम्मत की दुकानों को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करने का फैसला लिया है। सरकारी नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि 20 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद से माल ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रकों और टेम्पो के लिए रियासत महाराष्ट्र की हदों में आने जाने की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सड़कों, गली कूचों और बाजारों में निकलने वाले हर शहरी को मुंह पर मास्क या रुमाल लगाना लाजमी होगा। इसके साथ ही आम मुकामात पर थूकना जुर्म करार दिया जाएगा और ऐसे शख्स पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू औरती को मुसलमानों के जरिए कंधा देने और आखिरी रसूमात अदा करने की खबर गुज़िश्ता दिनों आई थी। एक बार फिर मध्य प्रदेश से ही मुसलमानों के जरिए इंसानियत की मिसाल पेश किए जाने की खबर मौसूल हो रही है। इस बार महलूक एक खातून थी और इसके बेटे ने हिंदू पड़ोसियों से लाख मिन्नतें की, लेकिन मोहलिक बीमारी की दहशत के सबब कोई इसकी मां को कंधा देने नहीं आया। ऐसे वक्त में कुछ मुस्लिम दोस्तों का साथ मिला और फिर आखिरी रसूमात अदा की गई। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक भोपाल के नीला जमालपुरा बाशिंदा मोहन नामदेव गोलगप्पे का ठेला लगाता है और इसकी 50 साला बीवी चंपा की मौत मंगल के रोज हो गई। मोहनलाल के 2 बेटे इसके साथ रहते हैं। इन बेटों ने अपने हिंदू पड़ोसियों से कहा कि वो आखिरी रसूम में शामिल हो जाएं, लेकिन कोई घर से निकल कर नहीं आया। फिर दोनों बेटों ने अपने दोस्त आदिल से अपना मसला बयान किया। जब वहाँ के मुकामी मुसलमानों को इस बात की खबर लगी तो वो मदद के लिए आगे आए। आदिल और दीगर मुकामी मुसलमानों ने न सिर्फ चंपा की अर्थी को कंधा दिया बल्कि रास्ते भर राम नाम सत्याग्रह का विरोध भी किया। सबसे पहले आदिल की मदद से चंपा के बेटे मां की लाश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी से घर लेकर पहुंचे। इस पूरे मामले में चंपा के बेटों के एक दोस्त शाहिद ने कहा कि इस बस्ती में तकरीबन 500 से ज्यादा हिंदू फैमिली रहती है। मोहलिक बीमारी का खौफ इस वक्त इतना लोगों के दिल में है कि हिंदू फैमिली का कोई आदमी चंपा के घर वालों का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। लॉकडाउन की वजह से रिश्तेदार भी नहीं पहुंचे। मुसलमानों के जरिए पेश की गई इंसानियत की इस मिसाल की सभी तरफ तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने भी हिंदू औरती को कंधा देने के लिए मुसलमानों की तारीफ की और कहा कि इंदौर के साउथ तोड़ा के बाद भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके से भी सामने आई फिरके वाराना खैर सगाली की तस्वीर।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मुल्क में मुस्लिम दुकानदारों, हॉकर्स और ठेला भंडी वालों पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमले मनसूबाबंद तरीके से फिरका परस्त तंजीमों के मजमूम प्रोपेगेंडे का नतीजा है, जिन्हें इख्तिदार में आला ओहदों पर फायज अफराद, मुंतखब नुमाइंदों, चंद तर्जुमान और IT सेल की हिमायत हासिल है। यूनियन ने कहा कि मरकजी धारे में शामिल मीडिया के एक हिस्से ने तबलीगी जमात से मुतालिक खबरों की आड़ में फर्जी खबरें चलाई, कुछ पुराने वीडियोस दिखाकर इश्तियाल अंगेजी में अपना किरदार अदा किया। यूनियन ने कहा कि तबलीगी मरकज़ में इज्तिमा के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसे ना तो वापस ली गई और ना ही इस इज्तिमा को रोकने के लिए कोई इक़दाम किया गया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में मुतअद्दिद मजहबी प्रोग्राम होते रहे। पार्लियामेंट को 23 मार्च तक काम करने की इजाज़त थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के पहले खिताब के बाद भी हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की। यहाँ तक कि जनता कर्फ्यू के दिन भी समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी हुई थी। यूनियन ने कहा कि हम वाज़े हैं कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की। आलमी सेहत तंजीम WHO ने मौलिक बीमारी के पेश नज़र आइंदा हफ्ते से शुरू हो रहे माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र रहनुमाया हिदायत जारी की है। तंजीम ने कहा, जहाँ तक मुमकिन हो मजहबी इज्तिमा और ग्रुप में जमा होने से बचें। इसके बजाय मजहबी इज्तिमा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज़राए का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मजहबी तकरीब मुनक़िद भी की जाए तो इनमें शामिल होने वालों की तादाद बहुत कम हो और समाजी दूरी और सफाई सुथराई पर अमल हो। ख्याल रहे कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना 25 अप्रैल से शुरू होने वाला है। माह सयाम के दौरान मुसलमान पूरे रोज़े रखते हैं और शाम को गुरूब आफ्ताब पर रोज़ा खोलते हैं। साथ ही मसाजिद में नमाज तरावी का खुसूसी नज़्म भी किया जाता है। रहनुमाया हिदायत में कहा गया है कि हर हाल में लोगों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। अमेरिका में मौलिक बीमारी से हलाकतों का एक और क़यामत ख़ेज़ दिन रहा, जब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमवात तकरीबन 2500 तक पहुँच गई। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मौलिक बीमारी का बदतरीन दौर गुजर गया। मौलिक बीमारी की वबा ने अब तक अमेरिका में 6,44,348 अफराद को अपना शिकार बनाया है। तेलंगाना भर में जुमेरात को मौलिक बीमारी के 50 नए केसों का पता चला है, जिससे रियासत में जुमला मौलिक बीमारी मुतासरीन की तादाद 496 तक जा पहुंची है, जो एक्टिव केसेस हैं। जुमेरात को मौलिक बीमारी की वजह से किसी के भी मरने की कोई इत्तला नहीं है और रियासत में अब तक इस वायरस की वजह से फौत होने वालों की तादाद 18 ही बताई गई है। रियासती हुकूमत के एक बुलेटिन में ये बात बताई गई है। बुलेटिन के मुताबिक 68 अफराद को मुख्तलिफ दवाखानों में इस वायरस के इलाज के बाद सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह अब तक रियासत में मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज किए गए अफराद की तादाद 186 हो गई है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मुफ्तियान ने माह रमज़ान के पेश नज़र आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो मौलिक बीमारी की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन है, इस ज़िमन में तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की जाती है कि वो नमाज तरावी अपने घर में ही अदा करें। जिस तरह सहर का एहतमाम घरों में होता है, इसी तरह इफ्तार का एहतमाम भी घरों में करें। इफ्तार के लिए मसाजिद को ना जाएं। इसके अलावा इफ्तार पार्टियों से गुरेज करें और इसकी रकम गुरबा व मोहताजों में तकसीम करें। दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल करके हस्बे इस्तिताअत सदका व खैरात करें। मुस्तहिक़ीन तक ज़कात को पहुँचाएँ। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की पाबंदियों का लिहाज रखें। तिब्बी माहिरीन की हिदायत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर बिलखुसूस सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार के हमरा GHMC के हुदूद में मौलिक बीमारी से मुतासरा नो एंट्री जोन्स का दौरा किया। वज़रे के ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 123 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। KTR ने कंटेनमेंट इलाकों का दौरा करते हुए अवाम की सहूलत के लिए इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने खैरताबाद, विजयनगर कॉलोनी और मल्लेपल्ली इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुकामी अफराद से बातचीत की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। अवाम में अशिया ज़रूरिया की सरबराही के इक़दामात करने का मुतालबा किया। KTR ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कंटेनमेंट इलाकों में हुकूमत के फैसले के मुताबिक घरों तक ज़रूरी अशिया की सरबराही का इंतजाम किया जाए। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर अमलावरी के लिए रच्चाकुंडे के इलाके भोंगीर में RSS कारकुनों को इस्तेमाल किया गया था, जबकि पुराने शहर में भी एक मखसूस तबके को निशाना बनाने पुलिस में अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद की खिदमत हासिल की जा रही है। मुगलपुरा हरीबौली चौराहे पर आज पुलिस के एक हामी ने वहां से गुजरने वाले एक तबके के अफराद की गाड़ियां जब्त कराने में अहम रोल अदा किया और लाठियों से ज़दोकोब भी किया। खानगी अफराद की पुलिस पिकेट्स पर तैनाती की बात आम होते ही अवाम पर बरहम हो गई और इस बात का पता लगाने हुजूम की शक्ल में बाज़ अफराद पुलिस चेक पोस्ट पहुँचकर पुलिस के इस रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। बताया जाता है कि 22 साला निकलेश जो पुलिस का हामी है, इसने पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस अहलकारों की मदद करते हुए वहाँ से गुजरने वाले मुगलपुरे के नौजवानों की लाठियों से पिटाई की। मुकामी अवाम ने निकलेश की शिनाख्त कर ली और पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट पर खानगी अफराद की खिदमत हासिल करने पर एतराज़ किया। पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा और मीर चौक में मुकामी अवाम को लॉकडाउन पर अमलावरी के नाम पर मुसलसिल हरासा करने की इत्तलात है। मुतालिका सीनियर अहदेदार खामोश हैं।
ہری بولی پولیس چیک پوسٹ پر خانگی افراد کی موجودگی پر اعتراض کرنے اور متعلقہ عہدیداروں کے علم میں اس بات کو لانے پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ رکن اسمبلی چندران گٹا و قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے حکومت اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک، کرسمس اور بدکمہ تہوار کے موقع پر اس مرتبہ عوام کو جو تحائف دیے جاتے ہیں اور مختلف مساجد، گرجا گھروں اور عوامی مقامات پر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو منسوخ کرتے ہوئے ان تہواروں کے لیے بجٹ میں مختص کردہ رقم کو استعمال کرتے ہوئے ریاست کے غریب خاندانوں کو اجناس کے کٹس فراہم کیے جائے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب اور متوسط خاندان بے حد پریشان ہیں۔ کئی مجبور و بے بس خاندان ریاست میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس آج کی تاریخ میں ایک وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے۔ اپنے ایک بیان میں اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ رمضان المبارک کے دوران 4 لاکھ سے زائد مسلم خاندانوں میں کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 1000 مساجد کے پاس دعوت افطار اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کرسمس میں بھی تحائف کی تقسیم کے علاوہ مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بدکمہ تہوار جو اکتوبر میں ہے، اس موقع پر 1 کروڑ خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ قائد مجلس نے بتایا کہ ان تمام تہواروں کا مجموعی بجٹ 373 کروڑ ہوتا ہے اور رقم کو فوری طور پر استعمال کرتے ہوئے اس سے غربا کی امداد ضروری ہے۔ ریاست میں تقریباً 1 کروڑ خاندان ہیں جن میں 80 لاکھ خاندان غریب و متوسط ہے۔ اگر حکومت اس رقم سے ان کی امداد کرے گی تو فی خاندان کو 466 روپے پر مشتمل اجناس کا کٹس فراہم کر سکے گی۔